and it is very shocking for all of us to hear what happened in Pahalgam. And this makes us more, remorseful, and we all must contribute towards the unity of the nation in whatever the way we can. So this is only a simple point I would like to say. Again, beginning with the act which was there, the tourist breaks down as she leaves the site of the terror attack in J&K Belgaum district. This makes us more confident of the fact that we must strive for the nation's well-being. We must strive to be together. We must strive to do our best for the society, come what may. That is the whole point we can say. So you can see, I'm not just going to read anything. You just have a look, and we can understand what was the shocking thing happened over there. 2 crore and counting terror strikes at heart of record tourist surge. That is in local economy. We already discussed. Otherwise, also you just see. Vietnam, a journey of ascent, 50 years of unity, growth and global ambition. Three keywords are very important. तो हमें यही देखना है कि कैसे वियतनाम ने आपको पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी 75 1975 के बाद कैसे इकोनॉमिकली वियतनाम इतना स्ट्रांग हुआ, और 1986 ऑनवर्ड द नेशन embarked on a series of economic reforms. आप ये कीवर्ड बस याद रखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को दो ही कहा गया, दैट इज रिनोवेशन, and it charted a path of consistent growth and reform. Now Taiwan is Vietnam is one of the amazing examples how things can move. The country has signed and joined 17 free trade agreements, thereby linking its economy with more than 60 major global markets. It is deeply entrenched into the supply chains, global hub for trade and manufacturing, and Vietnam is now among the world's top 20 nations by trade volume. Top 20 recipients of FDI since 2019 and top 10 countries for remittances inflows. And you see the size of Vietnam. That is why it is very inspiring. India has got deep relationship with Vietnam, and it believes in the global integration, and it has got partners like India. And India had done a lot since 1975 and beyond it to make Vietnam what it is. So that is why we still believe that you must compare what kind of values and what kind of skills and what kind of policy decisions we can learn from Vietnam to rise ourselves. World Book Day आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कहते हैं कि बुक रीडिंग इज माय हैबिट, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे बुक रीडिंग डे या बुक हाउ बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल दिए गए हैं. जस्ट रीड थ्रू, गिव इट टाइम फॉर अ फ्यू सेकंड्स ऑन ऑन इट. आप इस पर देखिए और फिर हम आगे बात कर सकते हैं. पार्टनर्स फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, डेफिनेटली इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यूएस को सोचना होगा. इट हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी अपॉर्चुनिस्टिक एंड मिस्चीवियस, और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर ओन बेनिफिट. दे आर नॉट यूजिंग इट प्रोपोर्शनेटली, एंड देन दे आर सेइंग जितना आप दोगे उतना मैं दूंगा. डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट के केस में भी पाकिस्तान का सहयोगी पहले रहा है, लेकिन यूएस ने हमारे हाथ बांधे हैं, और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन में भी हमें कोई खास मदद नहीं की है. अब अगर वो ऐसा चाहेंगे तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं. तो डिफेंस, मिलिट्री एंड इवन ग्रीन एनर्जी को भी वो छोड़ना चाहते हैं, और साथ में क्लाइमेट चेंज को भी नहीं मानते. तो ये हमारे लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं. अब राव इंद्रजीत सिंह ऑनरेबल सर ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने बस अब उन्होंने यहाँ पर जो एक ऐसे फॉर्म में जो ये लिखा कि भाई कैसे क्या अर्थ डे का मतलब क्या है. उन्होंने ग्राउंड वाटर रिजर्व की बात की, उन्होंने फॉरेस्ट की बात की, उन्होंने साथ में कंजम्पशन और ग्रीड की बात की. तो ह्यूमैनिटी क्या वाकई 2021 और 25 में अगर हम हैं तो क्या 2100 तक हम रह पाएंगे. पॉइंट ये है. तो 2021 का COP26 समिट, ग्लासगो की समिट की उन्होंने बात की. पंच अमृत पॉइंट्स को उन्होंने दोबारा दिया. उनको आप पांचों एजेंडा आपको भी याद होने चाहिए. 2070 तक जीरो एमिशन, 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030, रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी 45%. ये बोल्ड है. तो सोलर एनर्जी का एग्जांपल दिया, पीएम कुसुम है जैसे. नेशनल सोलर मिशन की बात है, गुजरात और राजस्थान में बड़े बड़े सोलर पार्क हो रहे हैं. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अनदर फ्रंटियर की उन्होंने बात की. फेम की बात की, और दिल्ली गवर्नमेंट भी अभी एक स्कीम लेके आ रही है, उसकी भी हमने चर्चा की थी. और साथ में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वेटलैंड्स, और साथ में कूनो और चीते की बात तो हमने की है. अर्बन पोल्यूशन में हमने एनसीएपी की बात की, दिल्ली में क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की, और कैसे हम
ऑटो का जो है वो सीएनजी ऑटोज की हम वो बंद कर रहे हैं। उसके बाद हम सिर्फ ई ई ऑटोज पे आएंगे। ई रिक्शा के अंदर भी हम स्टार रेटिंग की बात कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन और साथ में हम क्लाइमेट फार्मिंग प्रैक्टिसेस की बात भी कर रहे हैं। और नए रूल जैसे ई वेस्ट, प्लास्टिक मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स कोड, उसके बाद लेबर कोड, ये सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात भी हमने की। तो इसीलिए अर्थ डे की जगह उन्होंने पूरा एक समरी दे दी मेंस के लिए और एससी के लिए। आई थिंक दीज आर वंडरफुल पॉइंट्स। फिर वही बात जो हमने पहले भी की थी कि भाई सेवरल कंट्रीज दे आर दे आर इन ए मेस। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बोला है वो करके दिखा दिया। तो कमेंट्री वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स की यही है कि एक आउटरेज है, एक रिडिक्यूल है, उन्होंने ऑन गोल कर दिया। और इन इन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं उसके वो देखने वाली बात है। जो फ्री ट्रेड और लिबरलाइजेशन की बात थी वो खत्म हो रही है और अब एक कंजर्वेटिज्म और नेटिविटी की बात आ रही है। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो रहा है। ये एक्सपेक्टेड ही है। अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम अपने लाइफस्टाइल और प्रेफरेंसेस को और ज़्यादा कैसे सस्टेनेबल बनाएं। जैसे हमने मोदी जी ने सर ने बात भी की थी। इवन स्मॉल डिक्लाइन इन ट्रेड कैन गो इन लॉन्ग वे टू encourage पीपल्स टू embrace एंड implement चॉइसेस प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। काइंडर एंड सेफ मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। और जो ओल्ड रूल बेस्ड जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है उसको हम रीबूट कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ को हम जिंदा रखने के लिए साथ मिल सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे आइडियाज को आप कह सकते हैं कि दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर आउट ऑफ द बॉक्स। ईरान सऊदी शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया अपोज अ वॉर डील विद ईरान अ डजन ईयर्स अगो, बट द किंगडम इज बैकिंग ऑनगोइंग इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस बिटवीन यू नो यूएस एंड ईरान टू रीच न्यू एग्रीमेंट। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया और ईरान सुप्रीम लीडर दे आर मीटिंग। सो पहली बात तो ये है कि ईरान जो है वो एक अभी भी एक रीजनल ऑर्डर चाहता है मिडिल ईस्ट में, जिसमें यूएस का रोल ना हो। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहा गया है, ईरानियन आर्म्ड और फंडेड मिलिट्री है जैसे हेजबुल्ला है, लेबनान में हमास है, हौतीज हैं, ये सब तेहरान के आगे एक्सटेंशंस हैं। दूसरा जो है डैमेज तो हुआ है लेकिन खत्म पूरे नहीं हुए हैं। सऊदी अरेबिया जो है हिस्टोरिकली यूएस सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। द यूएस एयरफोर्स यूज द प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो अल खर्च सऊदी अरेबिया में है। तो यही बात है कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ईरान ने जो है वो बार बार बोला है कि हमें न्यूक्लियर वेपनाइजेशन नहीं करना है, हमें यूरेनियम इनरिचमेंट चाहिए ताकि हम एनर्जी और पीसफुल पर्पज के लिए हम करें। सऊदी अरेबिया लेकिन शुरू में डिस्ट्रस्ट कर रहा था लेकिन अब जो है चीजें डिफरेंट हैं। और थिंग्स आर लिटिल बिट चेंजिंग। बट ऐसा हुआ क्यों? द पॉइंट इज दैट फर्स्ट, ईरान का जो अप्रोच है, उन्होंने यूएस के रोल को करने के लिए बिल्कुल खत्म करने की बात को उन्होंने बदल कर आप कह सकते हैं कि प्रॉक्सीज के थ्रू जो कर रहा था उसकी जगह अब चाहा कि खुद उनसे बात करें। और यूएस ने भी अपनी ट्रूप जो है सीरिया से भी हटाई हैं। और यूएस फोर्सेस जो इराक में भी हैं वो भी कम हुई हैं। और अफगानिस्तान का तो हम पहले से जानते हैं। यूएस सऊदी डील जो है अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज की और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की, वो अभी होगा भी तो वो ईरान जो ईरान है उसके इंटरेस्ट को वो हार्म नहीं करता है। ब्रॉड कंसेंसस है ईरान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में कि हमें निगोशिएट करना चाहिए और हमें जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे सैंक्शंस भी शायद कम हो जाएंगे और सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रिलेशंस में यानी ईरान के रिलेशंस को बढ़ने में भी मदद मिलेगी। सऊदी अरेबिया के लिए अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या चेंज हुआ है, तो अब विजन है सऊदी अरेबिया का कि हम गैस बेस्ड इकोनॉमी, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को मोल्ड करके हम ग्रेट फाइनेंशियल पावर बने। उसमें इंडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 8 ट्रिलियन जो है न्यूयॉर्क सिटी प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो हाउथीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बावजूद भी ईरान के साथ एक रिलेशनशिप है। तो यूएस और ईरान टाइज जो हैं वो यूएस और ईरान टाइज लगा लीजिए, वो सऊदी अरेबिया के लिए कोई कांटा नहीं। सऊदी अरेबिया को उससे इशू नहीं है। तीनों अपनी अपनी जगह अपने अपने स्फीयर में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आर्टिकुलेटिंग अप्रोच हम इसे कह सकते हैं, ये वन साइडेड अप्रोच नहीं है। और अमेरिकन अलायंस से कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया भी ऊपर उठना चाहता है। और ईरान और इसराइल ने जब स्ट्राइक्स दो दो बार किया तो यू नो सऊदी अरब ने भी अपोज किया, वो भी पैलेस्टीनियन कॉज के लिए साथ खड़े हैं। तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स एंड चेंजेस व्हिच यू मस्ट सी सो दैट यू कैन राइट ए आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन। बाइक टैक्सीज का पहले भी आया है कि जब तक पूरे पूरे रेगुलेशंस और परमिट्स और सारी चीजें नहीं होंगी तो वो नहीं चलेगा। तो बॉल जो है गवर्नमेंट कोर्ट में चली गई है। वो पॉलिटिकल कॉल की तरह है। बट सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट हैज डन व्हाट इट वाज रिक्वायर्ड टू बी।
रैपिड स्विंग्स इन टेम्परेचर, ये हमने पहले भी बात की, लेकिन ये लाइन आप जरूर एग्जाम में लिखेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। वैन गॉस लास्ट वर्क एंड लीगल बेटर ऑल स्पॉट इन द फ्रांस दैट ही पेंटेड, तो वैन गॉग को देख लीजिए, ट्री रूट्स हैं, लास्ट पेंटेड वर्क है। वैन गॉस के लास्ट डे अवूर्स में थे। डच पोस्ट इंफॉर्मेशन मास्टर अराइव्ड इन अवूर्स May 1890, and after spending a year, at a psychiatric hospital where he had voluntarily entered after the mental crisis during which he cut off his earlobe. So वही बात है कि महान थे। More than 80 works he produced in the 2 months, including more than 70 paintings. हाउ रेजिलिएंट इज इंडिया इन ट्रेड अपहेवल्स, हमने इसकी बात इस तरीके से नहीं की है। वियतनाम की अभी हमने चर्चा की थी पहले भी। तो वियतनाम जो है वो, अगर यूएस की डिकपलिंग की बात होती है चाइना से, तो उसमें बाकी पॉपअप होके आते हैं, उसमें वियतनाम भी आता है, इंडिया भी आता है, सैमसंग है, नाइकी है, एप्पल है, सबको जगह चाहिए। वियतनाम एक तरीके से डिफैक्टो चाइना है, लॉन्ग बिफोर द टर्म बिकेम पॉपुलर, लेकिन यूएस ने उनके ऊपर भी लगाया है, तो इंडिया के लिए मौका है। और इंडिया ने जबकि ऐसा नहीं किया, चाइना ने, चाइना के साथ भी अपने हाथों को बांधा वियतनाम ने, और यूएस के साथ तो है, तो इसीलिए अब उनके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है। और आप कह सकते हो कि इंडिया ने अपने एक स्लो बट स्मार्ट स्ट्रेटेजी इंडिया ने ली है। इंडिया ज़्यादा रेजिलिएंट है, इसलिए हमें कहना चाहिए, पॉलिसी प्लानर्स डिकेट का उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट्स के बावजूद भी हमारे पॉलिसी फेलियर्स नहीं हुए। इंडिया जो है इंसुलेटेड है अभी भी ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन से, इंडिया का रोल अभी भी है, और इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैक्सिको में देख लीजिए आप, नाफ्टा की बात है। और आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल चेन है उसका भी इंडिया पार्ट होता जा रहा है। इंडिया का टेस्ट है इकोनॉमिक रेजिलियंस के हिसाब से, इंडिया लेस डिपेंडेंट है फॉरेन ट्रेड के ऊपर, जबकि वियतनाम का डाउन साइड है वो तो बहुत ज्यादा है। तो इनकम ग्रोथ हमारी अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है, लेकिन हमें फिर भी रिवाइव तो करना ही होगा। पॉइंट यही है, हमारा होम एडवांटेज भी है। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना स्टॉर्म को अच्छा वेदर कर लेगा वियतनाम के अलावा, लेकिन यूएस किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया स्टिल ट्रेड शेयर ऑफ इंडियन जीडीपी एट 30% इज मच लोअर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 46%। तो इंडिया अभी भी, हम शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन एमएसएमई के इशू, लिक्विडिटी, फिर हमारा स्किल, वो सारे प्रॉब्लम अपनी जगह रह जाते हैं। स्टैटिस्टिकल सिस्टम पे हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि बात की गई है कि भाई, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रगति है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, वो कोऑर्डिनेशन को एनहेंस करने के लिए बनाया गया था, गवर्नमेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, और एक हाई इम्पैक्ट टूल के तौर पे बनाया गया था। तो प्रगति जो है उसने इश्यूज लिए हैं, प्रोविडेंट फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, स्टूडेंट ग्रीवेंसेस है, एग्जाम लॉजिस्टिक्स हैं, जो मिनिस्ट्री डोमेन से हट के हैं, बड़े अलग अलग जगह से। 2019 इलेक्शन लगा लीजिए, कोविड लगा लीजिए, बहुत सारे चैलेंजेस को उसने लिया, और आप कह सकते हैं शेप भी किया। तो बेटर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अगर आप बियॉन्ड करेंगे, सबको जोड़ के करेंगे, इंटीग्रेटिंग हेल्थ रिकॉर्ड विद द सर्विस डिलीवरी डेटा, मैचिंग एजुकेशन विद द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू रियली, समवन आस्क यू कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो आपको ये जो इंटीग्रेशन है, जो ये स्मार्ट पॉइंट है, जो रिवाइविंग ओरिजिनल स्पिरिट जो प्रगति की है, इंटेलिजेंसी, कोऑर्डिनेशन, अकाउंटेबिलिटी और आउटकम ड्रिवन जो मैकेनिज्म है, वो एसेंशियल है, उसको आपको सक्सेसफुल बनाना ही होगा। इंडिया कैन रीप लॉट मोर बेनिफिट फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। एग्री फाइनेंसिंग एक है, डिजिटल अडॉप्शन दो है, स्ट्रीमलाइनिंग, सस्टेनेबल स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप सब में अलग अलग एग्जांपल्स दीजिए। इंटीग्रेटेड इनपुट आउटपुट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर के केस के अंदर। फिर कैलिब्रेटेड क्रेडिट इन्फ्यूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे पॉइंट हम कर रहे हैं, तो आपको इन पे सोचना पड़ेगा कि भाई, अगर बात करता हूं मैं कि कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो रही थी, तो फिर इसमें नेफेड ने क्या किया, इसमें हैफेड ने क्या किया, इसमें वर्का ने क्या किया। डिजिटल अडॉप्शन अगर आ रहा है, तो सरकार ने जो एग्री स्टैक बनाया, उसके अलावा जो प्राइवेट भी, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐप्स हैं, प्राइवेट भी बॉडीज हैं जो इवन सैटेलाइट डेटा भी दे रही हैं, तो उन्होंने क्या किया। साथ में फिर अगर आप बोलते हो कि भाई एग्री फाइनेंसिंग की बात है, तो कृषि पीएम, पीएम मान धन योजना, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस है, उसके साथ साथ जो है किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद फीमेल्स के लिए है। सप्लाई चेन की बात है, तो उसके अंदर आप कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके बाद वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड लॉजिस्टिक्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का रोल क्या है। हम बात कर रहे हैं कि शहरों के पास हम अर्बन एरिया के 50-100 किलोमीटर के अंदर अंदर हम एक ऐसा एरिया क्रिएट करेंगे जहां पर फार्मर डायरेक्ट अपना माल लेके आ सके, उसको सप्लाई का भी पता रहे और नुकसान भी ना हो। तो आपको स्कीम्स इनके साथ लगानी पड़ेंगी, चाहे फिर वो ओमनी चैनल जिसकी अभी बात की, ओएनडीसी की बात की थी हमने, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की थी, सर्विस डिलीवरी की बात की थी, उसको हमें और ज़्यादा काम करना होगा।
आवर शील्ड मस्ट नॉट बिकम ए स्लिपरी स्लोप। तो वही बात है, इंडिया ने ड्यूटी जरूर लगाई है रेशनल के लिए, लेकिन जो है हम उसको अगर नीचे होने देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें फिर भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाना है, लेकिन साथ साथ में अपनी जो हमारा जो इंडियन स्टील का जो सिस्टम इकोसिस्टम है वो डब्ल्यूटीए कंप्लायंट है। हमें कॉम्पिटिटिव रहना होगा, हमें क्वालिटी को भी देखना होगा, क्वालिटी कंट्रोल को भी देखना होगा, और हमें जो है वो डिफेंसिव ज़्यादा ना होकर हमें पॉजिटिवली एग्रेसिव होना पड़ेगा। और जहाँ तक क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, जैसे लिथियम की बात है, तो उसकी स्क्रैम्बलिंग में हम रोल प्ले कर सकते हैं। हम ने जो है चाइना के बाद अब हमारे पास मौका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो जम्मू में लास्ट ईयर बताया ही था कि कैसे 5.9 मिलियन टन है, लेकिन जम्मू में बताया था। छत्तीसगढ़ के अंदर भी फिर हमने बात की, कोलकाता बेस्ड माइनिंग फर्म ने भी ऐसा करना शुरू किया। इंडिया ने तो बाहर भी रिलेशंस किए हैं, लैटिन अमेरिका में भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड तो सब जगह है ही। तो स्ट्रैटेजिक रिओरिएंटेशन चाहिए, माइनिंग की तरह हमें नहीं करना होगा, हमें एक एक स्मार्ट अप्रोच लेनी होगी, और रिसाइकल्ड मिनरल जो है वो प्रैक्टिकली उसको माइनिंग का अल्टरनेटिव बनाना होगा, ताकि हम चाहे फिर वो बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी की बात है, और जो हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स की बात है, ये दोनों चीज़ें हमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से जोड़नी होंगी। साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जो डिजिटल ट्रैकिंग है अगर वो हो जाती है, एक टूल बना सकते हैं, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया बैटरी पासपोर्ट का, ताकि आप लास्ट एंड यूजर से लेकर फिर पूरी रिसाइकल कर सके। ऐसा एकदम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमने सऊदी अरेबिया के साथ की, और एनर्जी हमने जैसे बात किया, मैंने आपको एनर्जी की बात हुई, और साथ में मिडिल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC इसकी बात भी हुई। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में हमारे लिए कैटलिस्ट है। अभी हमने बात की, हम लार्जली इंसुलेटेड हैं, बेनिफिट होगा ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट से, कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ है हमारी एक्सपोर्ट्स को, रेमिटेंसेज हैं, आरबीआई ने रेट भी कट किए हैं, इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्रोल में है। चाइना ऑफेंसिव में पुट इंडियन स्पॉट, अगेन वही बात है कि एक टेरिबल सिचुएशन है। अगर हम हिलने की बात से बोले तो ग्रेट इकोनॉमिक पावर है इंडिया, इकोनॉमिक साइज उसका बहुत बड़ा हो सकता है और भी, और पोटेंशियल इकोनॉमिक डायनेमिज्म भी है। तो यही हमारे लिए मौका है कि कैसे हम अपने आप को नेचुरली फिट बनाएं, हम कैसे इस मौके का फायदा उठाकर जो भी जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, रशिया की है, यूक्रेन की है, यूरोप की है, चाइना की है, इंडिया इज डेफिनेटली इन यूनिक पोजिशन। और चाइना जो है पॉलिटिकली फ्रजाइल है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, लेकिन इंडिया के पास वो, क्या वो दिल्ली है, क्या इंडिया के पास उतना पावर और इतना सिस्टम को संभालने की हिम्मत है? लेकिन आई एम श्योर आने वाले समय में हम ऐसा कर पाएंगे। हमने बहुत सारे आइडियाज पे इस पे चर्चा की है। तो बोल्ड रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बूस्ट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोल्ड रिफॉर्म्स हम लेके आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमने बात की है, PLI स्कीम की हमने बात की है, इंडिया डेवलप नेशन की बात करते हैं 2047 तक, हमने जो है रेगुलेटरी फ्रिक्शंस को कम करने की बात की है, हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की लास्ट सेशन में बात की थी, हमने इंटीग्रेटिंग बात की है MSMEs की ग्लोबल वैल्यू चेन में, हम उनके क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है डीक्रिमिनलाइजिंग बिजनेस लॉस को कर रहे हैं, और साथ साथ में हम AI में भी हमने पैसा लगाया है, हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन में भी लगाया है। इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का वो 20 to 23% हो गया 12% GDP से। तो हम लगे हुए हैं और हम छोड़ने वाले नहीं। ULI फैसिलिटेड 1.4 मिलियन लोन्स वर्थ 65,000 करोड़। तो ये अपने आप में एग्जाम्पल है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जो कि लोगों को मदद करेगा, लोगों को इसमें मदद की, और साथ में जो है लोगों को लेंडर को डेटा देना पड़ता है कि वो लोन प्रोसेस होगा, और 60 सच डेटा सोर्सेज हैव बीन लिंक्ड टू दिस प्लेटफॉर्म। जल्दी पैसा आएगा, काम बनेगा, कॉस्ट बोरिंग की कम होगी, आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल भी है, जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो गाइडलाइंस टू बूस्ट बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ बाय 1.6%, ये भी एक एग्जांपल है। तो टॉप बैंक्स के यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं कि जिनको फायदा होगा। तो पॉइंट यही है कि लैंडिंग में अगर आप कॉस्ट थोड़ी सी और कम होगी तो आपको बेनिफिट होगा। सारे के सारे इकोनॉमी में इससे बेनिफिट आते हैं। ग्लोबल स्ट्रेटजीज बेट ऑन इंडिया बट सी एशिया ग्रोथ डिसलिरेटिंग। तो वही बात है कि इंडिया को और पुश करना होगा, और ग्लोबल सिनेरियो के अंदर हमें एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सब जगह अपने आप को और पुश करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो दैट इज व्हाट दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉमन थिंग्स, एंड ये एक आउटलुक की तरह है जिसपे आप देखना सीख सकते हैं। US रिसेशन की हमने बात की थी कि अभी भी रिसेशन के चांसेस बहुत थोड़े हैं, क्योंकि उससे ये भी एक व्यू पॉइंट है कि रिसेशन हो सकता है। हमने सेशन में आप देखेंगे दोबारा से, अगर आप एक लेक्चर चेक करेंगे तो उसमें हमने कहा था कि रिसेशन नहीं होगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं रिसेशन होगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू आल्सो टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, कि कैसे जो भी टैरिफ और जो भी
डाउन साइड्स आए हैं, जो भी जॉब्स क्रिएट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्या वो जॉब हो पाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या कम हो पाएगी, साथ साथ में अमेरिका का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने की बात है, जैसे कोविड के बाद की बात थी, तो क्या वाकई अब वो है उसको संभाल पाएंगे, और जो इतना बड़ा शॉक है वो एब्जॉर्ब कैसे होगा। फिर से वही बात कि गोल्ड प्राइसेस 1 लाख से ऊपर चले गए, हमने ऑलरेडी बात की थी। टैरिफ टेंशन हैं, सेंट्रल बैंक भी गोल्ड को खरीद रहे हैं, तो मोमेंटम बना हुआ है, गोल्ड एक कोलेट्रल की तरह है। और बहुत जगह इसका यूज करते हैं। स्लो डाउन इन इकोनॉमी लास्ट फ्यू मंथ से गोल्ड हुआ है, गोल्ड प्राइसेस कंटिन्यू टू ग्लिटर, गोल्ड लोन्स आर लाइकली टू रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनबीएफसीज की चर्चा हमने थोड़े टाइम पहले की थी। इंडिया का मार्केट हम बार बार बोल चुके हैं कि इंडिया का मार्केट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट इन इंडिया आफ्टर चाइना। गोल्ड डिमांड भी हमारी बड़ी है, हर घर में गोल्ड को यह व्यवहार माना गया है, इसको कमोडिटी बाद में माना जाता है। शरबत जिहाद ऑब्वियसली नॉट फेयर, हाई कोर्ट पुल्स ऑफ रामदेव पतंजलि, can't believe that is in India, so that is why it is true. Dealing with individuals' liberty, Supreme Court in Katara murder convict case, this is just an example. तो individual liberty के लिए Supreme Court has always stood up. This is just an example. अगर मेंस में आपको पास आता है तो you can write कि कैसे सुप्रीम कोर्ट एक स्मॉल इंडिविजुअल से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशनल मैटर्स को भी हैंडल करने में एक सेम पर्सपेक्टिव को रखता है। स्नो लेवल्स इन हिमालयस हिंदू कुश रीजन शुड पुश कंट्रीज टुवर्ड्स ग्रेटर कोऑपरेशन, ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। HKH है, लेकिन अब जैसी सिचुएशन है हम क्या उसकी बात करें। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की जो व्यू है वो हमें देखना होगा कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, मेकॉन्ग एंड अमू दरिया, अब इन पे कितना फर्क आ रहा है। लो स्नो इज अ परसिस्टेंस इशू, और ये क्लासिक केस है कि क्लाइमेट चेंज आ चुका है, और 4 डिकेड से हम देख रहे हैं कि कैसे फर्क आ गया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो ब्रीच हो चुका है, साथ में लोकल डेवलपमेंट्स भी आने लगे हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मलैंड्स इनटू अर्बन एरियाज। दूसरा, टेम्परेचर राइज, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन आर नोन टू कंट्रीब्यूट टू विंटर प्रेसिपिटेशन इन हिमालयस, बट द वीकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उन्होंने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच की बात है। ट्रांजिशन करना होगा ग्रीन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट के लिए, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ICI MOD का भी रोल है इसके अंदर, और ग्लोबल क्लाइमेट फोरम्स का हमें यूज करना होगा, कंट्रीज को आपस में बात करनी होगी, रिपेयरिंग इश्यूज को सॉल्व करना होगा, इकोसिस्टम को हमें ग्रीन एनर्जी बेस बनाना होगा, हमारे पास और कोई चारा है नहीं। इंडिया को अपना फोकस चेंज करना होगा। यूएस ऑलरेडी WTO सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इंडिया को अपना फोकस कैसे चेंज करना होगा। तो पॉइंट वही है कि नेटिविटी, उसके बाद जो है इंडिया ने कंजम्पशन की तरफ अपने ध्यान दिया, और जो अभी हो रहा है इट इज गोइंग टू फंडामेंटली ऑल्टर होल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो पॉइंट यही है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हर कंट्री का या तो डेवलपिंग स्टेज में है, या वो इमर्जिंग हो रहा है, और एडवांस इकोनॉमी का तो इमर्ज हो चुका है। उनका इनिशियल या एंड स्टेज में सप्लाई चेन के। लेकिन हम क्या है, हम तो मिडल और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज तो इंटरमीडिएट कमोडिटी बनाएगा, ना वो हाई एंड स्ट्रक्चर है उसके पास, ना डिजाइन है, ना बिगनिंग है। तो इस केस के अंदर हमें क्या देखना है, हमें जो है हमें ये देखना है कि कैसे हम अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं। यूएस कितना इंपोर्ट कर रहा है, यूएस कितना एक्सपोर्ट करेगा। तो इंडिया का जितना जीडीपी है, उससे ज़्यादा तो यूएस जो है वो अपने यूएस जो है आप इंपोर्ट की बात कर लेता है। तो इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम इंडिया को बात करते हैं, तो वो हमें सपोर्ट से होगा। हमें जो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, लैंड, लेबर, एजुकेशन, हेल्थ में चाहिए, वो हम करेंगे। तो बाकी तो ये एक अपने आप में सोच है। हमारा एयर एविएशन बढ़ रहा है, पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंटरस्टेट हाईवेज बढ़ रहे हैं, ये हमें देखना होगा। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हम कैसे फ्यूचर में पहुंच पाएंगे। एवरीथिंग एल्स आई बिलीव इज थियोरेटिकल, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर की जो राइटिंग है वो कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर की राइटिंग से कंप्लीटली मैच नहीं कर सकती। वो एफिशिएंट हो सकती है, इनोवेटिव हो सकती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पुअरेस्ट ऑफ पुअर पे होगा, और कितना होगा वो सरकार के ध्येय से, कॉन्स्टिट्यूशन के ध्येय से, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के ध्येय से डिफरेंट हो सकता है। So with these ideas, we finish our today's interaction and we will meet again with the same intensity. Please make your own notes, revise them weekly. जो लोगों से मैं डेली डिस्कस करता हूँ, उन लोगों को चाहिए कि they must come back with more innovative and more clear points, and must write these standard points in their notebook and must break in their answers, without which a failure would be there in the longer run. Avoid that, be smart, revisit the video, revisit it again, create a small capsule on your own, and there are so many ways to get success. Thank you very much.